Assalamu alaikum students. Welcome to the 27th lecture of Artificial Intelligence. I hope you are fine and enjoying this video lecture series of AI. I am Muhammad Omar Farooq, lecturer Computer Sciences, University of Education, Lahore. So in this video lecture, I will discuss the expert system, which is an important application of AI. जो कि शुरू के दिनों के अंदर जितनी भी applications AI की बनी हैं, तो ये उनमें से एक कह लें कि कामयाबी थी AI वालों की. So before going into the detail of expert system, I would like to discuss the summary of previous lecture. So in our previous lecture, we deduce conclusion A or B from the assumption A and B by using the inference rules. हमने inference rule को use करते हुए इस assumption से ये conclusion जो है वो deduce किया था. Then we discuss the weakness of propositional logic, जिसके अंदर क्या है, propositional logic cannot deal with the infinite data. ये जो है या तो फिर ऐसी वैल्यू के साथ डील करती है, जो ऐसे स्टेटमेंट के साथ डील करती है जो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं, जो बोथ यानी कि ट्रू और फॉल्स कोई एक उनमें से यानी कि प्रॉपर्टी ना हो, उसको ये डील नहीं करती. So then we move towards the predicate logic that deals with the infinite data and use the quantifiers. So there are two quantifiers, universal and existential. Universal for all and existential there exist. So then we move towards the semantic net, and semantic net basically a graph in which nodes represent the objects and the edges between the nodes represent the relationship. So then we discuss the weakness in semantic net, मीन के इसके अंदर semantic net क्या है कि negation operator को जो है वो deal नहीं करता. So then we move towards the inheritance and we talked about the concept of frames and semantic tree. ये कुछ summary थी हमारे पास previous lecture की, जो हमने previous lecture, I hope कि आपने उसकी वीडियो को देखा होगा. So in this video lecture I will discuss the expert system. So just look at this slide. This is a very important slide जिससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि ये क्यों हम ये टॉपिक जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो दिस साइंटिस्ट डेवलप्ड माइसिन टू डायग्नोज ब्लड इन्फेक्शंस विद अबाउट 450 रूल्स. ये 450 रूल्स के करीब थे उस माइसिन के अंदर, एंड माइसिन वाज एबल टू परफॉर्म एंड कंसिडरेबली बेटर देन अ जूनियर डॉक्टर. सो यहाँ पे देखें कि जूनियर डॉक्टर से भी इसको बेटर कंसीडर किया गया था. सो इतनी ही है, कह लें कि ये एप्लीकेशन थी. तो आज हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग भी देखेंगे किस तरह से काम करती है, और सबसे पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है. सो व्हाट इज़ रूल बेस्ड सिस्टम. सो जस्ट लुक एट द स्लाइड. रूल बेस्ड सिस्टम आर प्रोडक्शन सिस्टम, ये दूसरे नाम इसके ये एक्सपर्ट सिस्टम के ही दूसरे नाम हैं. आर कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज रूल्स टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस, आर डायग्नोसिस, are to determine a course of actions in a particular situation, or to solve a particular problem. So ये हमारे पास कुछ काम के लिए, इस तरह के कामों के लिए ये रूल बेस्ड सिस्टम जो है वो यूज़ होता है. There are three components of expert system. First component is a database of rules, also known as knowledge base, and the second component of this expert system is a database of facts, and the third component is an interpreter or inference engine. तो ये हमारे पास तीन जो हैं इसके components हैं. So तीन components ये यहाँ पे इसको देख लेते हैं. The knowledge base consists of a set of rules that represent the knowledge that this system has. तो ये किस तरह से हमारे पास जो रूल्स होते हैं उसको नॉलेज बेस के अंदर रखा जाता है. फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट दिस स्लाइड. फॉर एग्जांपल आप में से 10 लोग जो हैं वो सेम जो है वो सिम्टम्स लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास. डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके सिम्टम्स को सुनता है. तो इस तरह से आप उसके रूल्स बना सकते हैं दैट इफ़ अ पर्सन हैव सिम्टम 1 एंड सिम्टम 2, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन जो वो पर्सन है जिसको सिम्टम्स S1 है, S2 है, उसको ये डिजीज़ D1 होगी. इफ़ दिस इज़ ट्रू एंड देन दिस विल बी ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ देन का रूल लगाया. ये हमारे पास एक रूल बन गया ये वाला, इस तरह से कि अगर कोई बंदा जिसको सिम्टम ये है और ये भी है एंड ये भी है, तो यहाँ पे इसको डिजीज़ जो है वो D1 होगी. इन द सेम वे इफ़ अ पर्सन हैव सिम्टम S3 एंड सिस्टम S4 देन उसको जो है वो डिजीज़ जो है वो D2 हो सकती है.
In the same way, if a person have a disease D2 and symptom S5, if this condition is true, then this condition will be true. इसका मतलब उसको disease जो है वो D3 हो सकती है। तो इस तरह से वो डायग्नोज करता जाएगा, इस तरह से रूल बनाता जाएगा हर सिम्टम्स के हिसाब से कि किस तरह से वो कंबाइन करके वो ये किस तरह से होगा। ये एक्सपर्ट होगा अपने इस रूल्स को बना के हम क्या करते हैं, हम अपनी नॉलेज बेस के अंदर स्टोर कर देते हैं। एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज the database of facts represent the input to the system that are used to derive conclusions. So just look at these three rules. These are the inputs जो कि facts है हमारे पास S1, S2, S3, S4। अब ये भी चूँकि इसको हमने facts के अंदर लिख लिया हुआ तो ये भी हमारे पास facts बन जाएगी। तो 5 and 6, तो ये हमारे पास कुछ conclusions हैं और ये हमारे पास फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स की जितनी भी इनपुट्स हैं ये हमारे पास फैक्ट डेटाबेस के अंदर मौजूद होगी। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज द इंटरप्रेटर और इन्फरेंस इंजन इज द पार्ट ऑफ सिस्टम दैट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग कंक्लूजन्स, कि किस तरह से उसके कंक्लूजन जो हैं वो हमारे पास आने होते हैं, वो क्या कौन कंट्रोल करता है, वो इंटरप्रेटर और इन्फरेंस इंजन। So the rules for knowledge representation, rules are usually expressed in the form of if-then statements, such as if A then B, as discussed in our previous lecture। कि इस तरह से हमारे पास rules हैं जिसको हमने if-then की condition के अंदर ही हमने लिखा कि if A then B, if S1 and S2 then उसको disease जो है वो D1 है, या फिर इस तरह से ही हमारे पास है if temperature is below 0 then वेदर इज़ कोल्ड। तो ये हमारे पास जो है ना वो इस तरह से इफ़ देन की कंडीशन हमारे पास आ जाती है। उस फॉर्म के अंदर हम अपने रूल्स को लिखते हैं। सो देयर आर टू वेज टू डिराइव कंक्लूजन फ्रॉम द सेट ऑफ रूल्स, के सेट ऑफ रूल्स हमारे पास हैं। इसी तरह से हमारे पास फैक्ट्स भी आ जाते हैं। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें फैक्ट्स देता है, सिम्टम्स बताता है, हम उस सिम्टम्स को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के दो तरीके हैं जो कि हमारे पास जो है वो कौन करता है, इंटरप्रेटर और इन्फरेंस इंजन करता है। दैट इन्फरेंस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम दैट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग कंक्लूजन्स, मीन कि ये वाला जो है वो प्रोसेस को सारे के सारे कंट्रोल करता है। सो देयर आर टू वेज टू डिराइव कंक्लूजन फ्रॉम आवर रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फ्रॉम नॉलेज डेटाबेस। इन द सेम वे वहाँ पे एक फैक्ट डेटाबेस भी होगी, अभी थोड़ी देर बाद हम आर्किटेक्चर को भी देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। सो अब मैं ये एग्जांपल को लेता हूँ, आई विल टेक दिस एग्जांपल, द रूल्स इन डेटाबेस, द डेटाबेस ऑफ रूल्स, देयर आर 6 रूल्स, A and B, then if A and B then C, if A then D, if C and D then E, in the same way if B, E and F देन जी। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ मेरे पास फैक्ट्स हैं। फैक्ट 1 क्या है मेरे पास जो है वो A है, फैक्ट जो है वो मेरे पास दूसरा जो है वो B है, एंड थर्ड फैक्ट इज़ F। सो देयर आर 3 फैक्ट्स, मीन कि उसके इनपुट हमारे पास जो है वो ये हैं। एंड द गोल इज़ एज, मीन मैंने ये पता करना है कि अगर उसको ये 3 सिम्टम्स हैं A, B एंड F बताएं, उसको एज डिजीज़ जो है वो है या नहीं। अब इसको मैं क्या करूँगा, आई विल प्रोसेस दिस एग्जाम्पल बाय यूजिंग द फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग, कि किस तरह से हम अपने प्रॉब्लम में से क्या करते हैं, एक कंक्लूजन लेके आते हैं। कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो चाहे वो डिजीज़ के बारे में हो, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हो, हम पहले सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं बाय यूजिंग द नॉलेज इंजीनियरिंग, और फिर हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम रूल बना के हम ये वाले फैक्ट इस तरह से फैक्ट्स लेके हम बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग, ये 2 प्रोसेस है जिनके थ्रू हम आउटपुट लेके आते हैं। सो फॉर फॉरवर्ड चेनिंग initially the facts are A, B and F. So then I will check these rules कि कौन से रूल जो हैं वो इन फैक्ट्स के होते हुए, कि कौन से रूल जो हैं वो मेरे पास जो हैं वो चल सकते हैं, कौन से ट्रिगर हो सकते हैं। देन देयर आर द रूल 1 and 2, ये दोनों एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सो आई राइट दीज 2 रूल्स ओवर हेयर, देन आई विल फायर द रूल 1 एंड द रूल 1, द आउटपुट ऑफ दिस रूल इज C, मीन कि अगर उसको A, B, F ये 3 सिम्टम्स हैं तो ये रूल जब हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो इसकी जो आउटपुट होगी वो भी हमारी क्या आ जाएगी,
फैक्ट्स के अंदर आ जाएगी, क्योंकि अब वो तो उसको चीज़ जो है वो ये बीमारी या सिम्टम, ये जो भी चीज़ उसको कह लें, वो उसको मौजूद है। तो देन आई विल ऐड द आउटपुट ऑफ रूल 1 इन आवर फैक्ट डेटाबेस, मीन के फैक्ट्स के अंदर मैं उसको ले आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास अब फिर चेक करूँगा कौन सा रूल ट्रिगर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, जब मैं इस रूल्स की तरफ जाता हूँ तो जस्ट आई कैन इफ़ आई हैव द फैक्ट A, B एंड C एंड F, सो ये मेरे पास है, तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट जो है वो रूल 2 ही एग्जीक्यूट होता है। इसके लिए आई नीड C एंड D, फॉर दिस आई नीड E, एंड इन द सेम वे इन सब के लिए मुझे E चाहिए, जो कि मेरे पास अभी फैक्ट्स के अंदर नहीं है, इनपुट के अंदर नहीं है। देन आई विल फायर द रूल 2 and the output of this rule is D, and I will add this D in our facts, के ये अब facts का पार्ट बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको जो है अगेन आई विल ऐड द D in our fact database, यानी कि facts के अंदर, fact वाले कॉलम के अंदर मैं उसको क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। So after adding the D in our fact column, so then I will check these rules कि बाय यूजिंग दीज फैक्ट्स कौन से रूल्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इन दोनों को तो मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है। देन आई कैन एग्जीक्यूट द रूल नंबर 3 बिकॉज द रूल 4, 5 एंड 6 नीड ई फैक्ट, मीन कि अगर उसके पास ई है तो वो एग्जीक्यूट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सो आई कैन जस्ट ओनली एग्जीक्यूट द रूल नंबर 3, देन आई विल fire this rule and the output of this rule I will add into my fact column, so जो कि मेरे पास जो क्या है e को भी अब ऐड कर लिया जाएगा। in the same way then I will again check the rules and check करूँगा कि कौन सा रूल ट्रिगर हो सकता है। तो यहाँ पे देखें B, E, F, रूल नंबर 4 एंड 5 जो है वो ट्रिगर हो सकते हैं। then I will fire the rule 4 और 4 की आउटपुट देखूंगा कि क्या है। 4 की आउटपुट G है, इसको भी मैं अपने फैक्ट के अंदर ले आऊँगा। इन द सेम वे देन आफ्टर एडिंग द G इन माय फैक्ट्स, देन आई विल चेक अगेन द रूल्स कि मेरे पास कौन सा रूल चेक हो सकता है। को 5 रूल मेरे पास एग्जीक्यूट हो सकता है, तो 5 को मैंने एग्जीक्यूट किया और जैसे 5 को किया तो मेरे पास 8 जो है वो मेरे फैक्ट्स के अंदर आ गया। मीन कि अगर एक बंदे को मेरे पास फैक्ट्स क्या थे A, B, F, अगर ये चीज़ मौजूद हो तो उसको क्या है, ये एच डिजीज़ हो सकती है, ये हमारा गोल था, या कोई भी कह लें कि इस तरह हमारे पास जो प्रोसीजर जिसके अंदर एच हमारा गोल हो उसको जो फाइंड इस तरह से किया जा सकता है। इस तरह से ये फॉरवर्ड चेनिंग है। तो यहाँ पे हम अपने एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। देन द सेकंड वे इज़ द बैकवर्ड चेनिंग। सो आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द बैकवर्ड चेनिंग, जो कि हमारे पास दूसरा प्रोसेस है किसी भी जो है फाइनल स्टेट को इन्फर करने का, डिड्यूस करने का फ्रॉम आवर फैक्ट डेटाबेस एंड द रूल डेटाबेस। सो फॉर बैकवर्ड चेनिंग, सो आई विल राइट द फैक्ट्स इन दिस कॉलम। तो बैकवर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे गोल लिख देते हैं कि हमारा गोल क्या है, एज है। सो देन आई विल चेक द मैचिंग रूल, मीन कि अगर मेरे पास एज किस रूल से आता है। वहाँ पे तो था कि हम स्टार्ट से शुरू हुए थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम मैचिंग रूल के लास्ट से शुरू होंगे कि हाउ कैन आई गेट द गोल एज। सो बाय एग्जीक्यूटिंग दिस रूल, रूल नंबर 5, आई कैन गेट द आउटपुट एज, बट बाय वाचिंग दिस फैक्ट्स आई नीड A एंड E टू एग्जीक्यूट दिस रूल। तो जब यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो E नहीं है, तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट माय गोल इज़ E and the matching rule is for E is 3, because if I have E in my facts, then I can execute this rule and get the output age, which is my goal state. So यहाँ पे फिर again अब E मेरा गोल है, तो E को execute करने के लिए then again I need C and D. So if I have C and D in my facts, then I can execute this rule. तो ये मेरे पास अगेन क्या हो जाएगा, एक नया गोल सेट हो जाएंगे, C and D. And how can I get C and D? I can get from the rule 2 and rule 1. So just look at this point. I need C and D and the matching rule is 1. Then I will execute this rule. So क्योंकि मेरे पास जो है वो A मौजूद है, रूल 1 को A, B दोनों मौजूद हैं, तो इस वजह से मैंने क्या किया,
रूल 1 को करके एग्जीक्यूट करके उसकी जो आउटपुट सी थी उसको अपने फैक्ट्स के अंदर ले लिया। इन द सेम वे फॉर डी, उसकी जो इनपुट मौजूद है, इनपुट मेरे पास ए है, वो मौजूद है रूल नंबर 2 को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जस्ट लुक एट दिस रूल, इफ आई हैव ए देन आई कैन गेट द वैल्यू, दिस वैल्यू। सो डी मेरा जो है वो अगेन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डी भी मेरी इनपुट के अंदर आ जाएगा। सो यहाँ पे अब क्या है कि कोई नया गोल नहीं बना। जब नया गोल नहीं बनेगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा, तो ये बैकवर्ड चेनिंग इस प्रोसेस के थ्रू। तो पहले रूल 2 को फायर करें, फिर 1 को करें, फिर 3 को करें, फिर 5 को करें, तो आपके गोल जो है वो सारे के सारे अचीव हो जाएंगे। तो so there are two ways to derive conclusion from the set of rules which are forward chaining and backward chaining, and I solved this problem, this example, जो कि यहाँ पे ये मेरे पास ये rules हैं, then facts are A, B and F, the goal is age, I solved this problem। या अब इसको मैच कर सकते हैं आप उसके अंदर मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर के ये इस तरह से उसके सिम्टम्स हैं और ये उसको डिजीज़ हैं, तो ये किस तरह से ये काम करेगी। तो ये इसको हमने दोनों तरीक़ों से बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग के थ्रू देख लिया। द एक्सपर्ट सिस्टम आर्किटेक्चर, सो जस्ट लुक एट दिस आर्किटेक्चर। जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले आर्किटेक्चर उसका बनाते हैं। सो देयर आर 2 डेटाबेसेस, नॉलेज बेस एंड द फैक्ट डेटाबेस, and the user interact with user interface. So expert system shall have 4 components: inference engine, explanation system, knowledge base editor। तो यहाँ पे देखें ना कि ये नाम से ही लग रहा है कि नॉलेज बेस एडिटर, कि हमने अगर कोई एडिट करनी है, अपडेट करनी है की चीज़, तो वो ये पैनल होता है जी उसको एडिट करने के लिए। सो यहाँ पे the people involved in an expert system, so this is a very important slide कि किस तरह से हम कौन कौन से पीपल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले एंड यूज़र, जो कि यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर भी दिखाया गया है, ये तो है ही है। एंड यूज़र ऑफ द सिस्टम इज़ द पर्सन हु हैज़ द नीड ऑफ द सिस्टम, डेफिनेटली जो जिसको नीड है वो उसका एंड यूज़र बनेगा। इन द केस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, दिस मे बी अ डॉक्टर और इट मे बी एन इंडिविजुअल हु हैज़ कंप्लेंट दैट दे विश टू डायग्नोज। And the second person is the knowledge engineer. Knowledge engineer is a person who design the rules for the system। यहाँ पे देखें कि जो डिज़ाइन करता है वो knowledge engineer है, based on either observing the expert at work, कि जो काम कर रहा है किस तरह से उसने काम किया उस तरह से वो रूल बनाता जाएगा, or by asking the expert questions about how he और शी वर्क्स, के किस तरह से वो काम करता है, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखे और उसके फिर बाद में रूल बनाए। एंड द थर्ड पर्सन विच इन्वॉल्व इन आवर एक्सपर्ट सिस्टम, द डोमेन एक्सपर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, कि किस तरह से वो डिज़ाइन करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, द एक्सपर्ट नीड टू बी एबल टू एक्सप्लेन टू द नॉलेज इंजीनियर, कि किस तरह से एक्सपर्ट को चाहिए कि वो सही तरह से एक्सप्लेन कर सके अपने नॉलेज को नॉलेज इंजीनियर की तरफ, ताकि वो सही तरह से रूल जो है वो डिज़ाइन कर सके, दैट हाउ ही और शी गोज़ अबाउट डायग्नोसिस इलनेसेस। तो ये हमारे पास 3 पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस स्लाइड, द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। If in a situation where more than one conclusion can be deduced from a set of facts, कि अगर हमारे पास more than one conclusion आ जाए तो हम किस तरह से उसको डील करते हैं, conflict आ गया। For example, so just look at this point, there the input is same, I mean इनको उसकी if की condition जो है वो same आ रही है, तो यहाँ पे जो है वो उसकी output जो है वो different आ रही है। Then wear a coat, stay at home, then turn on the heat। सो यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो इनपुट सेम है, लेकिन उसकी जो आउटपुट जो कंक्लूजन आ रहा है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने किसको फायर करना है, किस रूल को हम फायर करें, तो ये हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। तो इसको किस तरह से किया जाता है, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेटिंग द प्रायोरिटी ऑफ द रूल्स। फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट दिस पॉइंट के मैंने यहाँ पे या फिर उसको क्या किया, ये मेरे पास आ गया इफ़ पेशेंट हैज़ पेन, और उसको क्या करें कि उसके रूल्स को थोड़ा सा स्पेसिफाई भी कर दें कि चेस्ट पेन है, कौन सी पेन है, इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर दें और साथ साथ उसकी प्रायोरिटी सेट कर दें। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी जाहिर बात है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा पहले एग्जीक्यूट होगा।
And the second way to resolve this problem, the alternative method is the longest मैचिंग स्ट्रेटजी के इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, दिस मेथड इन्वॉल्व फायरिंग द कंक्लूजन दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम लॉन्गेस्ट रूल. फॉर एग्जांपल जस्ट यहाँ पे देखें, इफ़ पेशेंट हैज़ पेन देन ये चीज़ है, इफ़ पेशेंट हैज़ चेस्ट पेन एंड पेशेंट इज़ ओवर 60 एंड पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ हार्ट कंडीशंस देन ये कर दें. अब जो जिसकी लॉन्गेस्ट ये ज़्यादा लंबा सेंटेंस है, ज़्यादा उसकी कह लें कि प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर दें. देन टेक टू एमरजेंसी. यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने पेन किलर दे दिया. इस तरह से जिसकी ज़्यादा वो लाइन लंबी जो होगी, उसकी कंडीशन ज़्यादा होगी, उसके साथ मैच कर देगा, हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं. इस तरह से हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर देते हैं. सो आई होप you enjoy this video lecture. In this video lecture we talked about the concept of expert system. इसका यूजेज क्या है उसको हमने देखा. Then how can we apply the forward chaining and backward chaining on our rules by using the facts, जिसके अंदर क्या करते हैं, फैक्ट को यूज़ करते हुए हम उसके रूल्स को भी यूज़ करते हुए हम अपने गोल को अचीव करते हैं. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल मूव टूवर्ड्स द मशीन लर्निंग विच इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ AI. अब वो तो पूरी एक फील्ड बन चुकी है. मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको थोड़ा सा पहले जो है वो उनकी वीडियोस को देखें, ताकि आप लोगों का जो है ना वो इंटरेस्ट उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.